Hello students. So in the last lecture we have seen some basic quantities, okay, like length, temperature. Let me revise it. Like for the here I will write like basic quantities, okay, base of physical quantity, okay, and here I will just write down the symbols, okay, and here it's a SI unit, okay. So I will just write down I will just write down only symbols. So first of all, I think you should know that length, SI unit will be meter. Okay. For the mass, SI unit will be kg. For the time, SI unit will be second. Okay. For the electric current, okay, SI unit will be ampere. After that, thermodynamic temperature, capital T. Okay. So for that unit will be Kelvin. Next one is that amount of substance. So we are knowing that amount of substance is denoted by small n. It's a mole. Okay. And finally, luminous intensity, I nu, and here you will get CD as a unit. Okay. So these seven quantities, basic quantities, we have already seen. Now let's talk about something new. Suppose for that length मैं आपको बात करना चाहूंगा कि लेंथ के लिए हमारे पास जो यूनिट था वो मीटर था, ठीक है, मीटर। अब आप थोड़ा सा सोचो, आप गुजरात के रहने वाले हो, ओके, और यहाँ से आप जा रहे हो सपोज हरियाणा या फिर दिल्ली आप जा रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे ये जो है वो डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिखाना बहुत ही लाइक बड़ा ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 500 किलोमीटर है, so 503 meter. So each and every time it's like very difficult to write down 5 lakh meter, okay. So at that time what we will do, I am just saying around, okay, okay. So it's more than that, very more than that. I should keep it like 8 or 9, okay. तब भी जो है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सपोज 500 किलोमीटर कोई प्लेस है तो आप इसको लिखोगे 5 लाख मीटर, सो इट विल रिमेन वेरी डिफिकल्ट ना, इट विल रिमेन वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं एक बात करता हूँ, दिल्ली की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सपोज द्वारका, okay. So it's like 500 kilometer, so 500 5 lakh meters are there, so it's difficult. Instead I can write like this, 500 kilometer, it will be very easy. The another thing is that suppose we just want to know about the size and diameter of bacteria, okay. So at that time if you are saying it's in a meter, so it will remain like 25 meters. So it's very difficult to write it down like this. So basically you can write it down like this, 0.25 micrometers, like this. You can write it down like this. So means we cannot use each and every time meter for any basic quantity. Suppose अगर हमारे पास लेंथ है तो हर बार कन्वीनियंट नहीं है कि आप मीटर ही यूज करो, ठीक है। हमारे पास और क्या हो सकता है, सपोज वो जो है वो बिग अमाउंट भी हो सकती है, मोर अमाउंट, ओके। और उसकी अमाउंट कैसे हो सकती है, दूसरी लेस अमाउंट भी हो सकती है। मोर अमाउंट के लिए आप किलो, मेगा, गीगा ऐसा यूज करो, ओके। और लेस अमाउंट के लिए आप माइक्रो, मिली ऐसे प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। ऐसा आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों, प्रीफिक्स। तो वहां से आया है प्रीफिक्स। तो यही क्वांटिटी है और यही क्वांटिटी के सभी क्या है, यही क्वांटिटी है और यही जो है बेसिक यूनिट्स है। लेकिन अगर हमें इसको यूज करना है, सो मीटर को अगर आप यूज करना है तो अब यहाँ पे किलोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर ऐसे प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। सो इवन नैनोमीटर, so that prefix were given by that SI system only. So in SI system, they have provided, in SI system
they have provided, like in SI system, they have provided units for a large quantity and small quantity. ये चीज बनती है। समझ रहे हो आप बात पूरी क्या बोलना चाहता हूँ ये? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो कौन से प्रीफिक्स है, चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया से यूनिट दे रखा है इन लोगों ने। ओके, अगर आप थोड़ा सा सोचो, अगर आपको बहुत ही छोटा सा यूनिट चाहिए तो आप डेसी ले लो, फिर सेंटी एंड मिली। यहाँ पे देखो 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3। तो अगर कहीं पे आपको 10⁻1 दिख रहा है तब आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, डीसी। जब आपको 10⁻2 दिखेगा आप यहाँ पे सेंटी लिख सकते हो। 10⁻3 जब आपको मिलेगा तब आप यहाँ पे मिली लिख सकते हो। समझे बात? अब 3 का गैप आएगा। अगर 10⁻6 है आप उसकी जगह पे माइक्रो लिख सकते हो। कैसे सर, समझ में नहीं आ रही बात? अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे बताऊँ, ये मेरे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, बहुत ही छोटा यूनिट है, 1 इंटू माइक्रो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻6 मीटर। से 1 माइक्रोमीटर हो गया 1 इंटू 10⁻6 मीटर। समझ रहे हो बात? तो ये है जो हम पूरा क्या कर रहे हैं बच्चों, लिख रहे हैं। 10⁻6 है तो इसको माइक्रो बोलते हैं, 10⁻9 नैनो, 10⁻12 पिको, 10⁻15 फेम्टो, 10⁻18 हेक्टो, 10⁻21 जेप्टो एंड 10⁻24 इट्स योक्टो। तो ये सभी आपको याद रखने, और देखो सभी स्मॉल है, स्मॉल लेटर है। ओके, अब अगर हम बड़े की बात करें, डेका हेक्टा किलो, इट्स 1 2 3 डेका हेक्टा किलो। ओके, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, टेट्टा एक्सा जेट्टा एंड योट्टा, गीगा टेरा पेटा एक्सा जेट्टा योट्टा, ये सभी प्रीफिक्स है। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, सपोज मेरे पास और भी एक एग्जांपल, 1 किलोमीटर से तो बहुत बड़ा यूनिट हुआ, इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू किलो। देखो तो आप यहाँ पे आप किलो देखो कहाँ पे किलो, यस ये रहा किलो। किलो की जगह पे आप कितना लगोगे 10⁻3, यहाँ पे लिख दो आप 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जो आपने पढ़ रखा था, जो आपको 8th में सिखाया गया था कि बच्चों 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, हर बार आपको 1000 मीटर ही बोलना है, तो आपने रट लिया था। लेकिन कैसे आया, तो वो ऐसा ही यूनिट का ही एक पोर्शन है बच्चों। समझ रहे हो पूरी बात? चलो, तो कैसे याद रखेंगे फिर से एक बार, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इट्स लाइक डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पाइको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो एंड योक्टो। पहले 1 2 3 है, -1, -2, -3, उसके बाद -6, -9, -12, -15, -18, -21 एंड माइनस क्या होगा 24 होगा। ठीक है, अब अगर आप बात करो तो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया 10⁻1 2 3 है। It's like a deca hecta kilo, deca hecta kilo. Okay, so it's like a 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3. So it's a deca, फिर हेक्टा, फिर किलो। ठीक है, 10⁻6, 10⁻9 एंड 10⁻12। सो किलो के बाद आता है मेगा, फिर आता है गीगा, फिर आता है टेरा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेगा, गीगा, टेरा, फिर आएगा पेटा, एक्सा, जेट्टा एंड युक्टा। बहुत याद नहीं रहता है, लेकिन आपको देखना होता है कि आप कैसे इसको कर सकते हो। ठीक है, आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो सबको। तो ये सभी स्मॉल क्वांटिटी के लिए, जो क्वांटिटी आपकी छोटी छोटी है उनको दिखाने के लिए, और ये जो सभी है वो क्वांटिटी जब लार्ज अमाउंट में, तब ये सभी प्रीफिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो सर, हमें ये सीखा हुआ यूज कैसे करते हैं। ओके, चलो हम लोग ये बात करते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। सभी एमसीक्यू के लिए पूरा ही चल रहा है आजकल। ठीक है, तो आप जो है वो अच्छे से समझ जाओगे कि क्या चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें कैसे यूज करते हैं। सपोज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर।
सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। नैनो की जगह हम क्या लिखेंगे, तो याद करो नैनो के लिए कौन सा था, तो यहाँ पे आप देखो नैनो के लिए नैनो नैनो यस 10⁻⁹। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आंसर आ जाएगा आपका 10⁻⁹ मीटर। सेकेंड थिंग इज दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना मैं कैसे कर रहा हूँ। आप यहाँ पे समझो कि मैं 1 किलोमीटर को इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तो लिख ही सकता हूँ। अब किलो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बोले, एक ही सेकंड बच्चों, अब यहाँ पे समझो ये है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर। किलो की जगह में क्या लिख दिया, 10⁻³। अब ओके हो गया, मीटर आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए वो तो आप देखो, आपको कौन सी चीज़ चाहिए यहाँ पे वो आपको देखना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे चाहिए माइक्रो। तो माइक्रो कैसे लाते हैं हम लोग, आप देखो। सो 1 इंटू 10⁻³ मुझे माइक्रो लाना है, तो मैं ऊपर माइक्रो से मल्टीप्लाई भी करूंगा और साथ ही साथ माइक्रो से डिवाइड भी करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा माइक्रोमीटर। अब क्या होता है एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो 1 इंटू, ये जो है वो है 1 इंटू 10⁻³ इंटू माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻²। ओके, या तो सर हमें माइक्रोमीटर चाहिए, आप समझ सकते हो, ये हो जाएगा हमारा माइक्रोमीटर। ये नीचे वाला जो माइक्रो है ना सर, उसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ओके समझ गया, यहाँ पे माइक्रोमीटर ऊपर वाला तो आ गया, नीचे वाले माइक्रो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो माइक्रो का प्रीफिक्स होता है। फिर आपको यहाँ पे एक बार देखना है कि माइक्रो में कौन सा आता है, माइक्रो में आता है 10⁻⁶। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10⁻⁶। तो ये हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। ये हो गया 1 इंटू, चलो 1 इंटू ही होता है भाई, 1 इंटू है, 1 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोमीटर। सो फाइनली आई गॉट आंसर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, आप देख सकते हो आंसर क्या आ गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है बच्चों बताओ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोमीटर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आराम से हम कुछ इस तरीके से ही जो है वो यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रीफिक्स क्यों दिए, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स दे दिए, लेकिन उसको यूज कहाँ पे करना है वो आपकी टेक्स्ट बुक वाले नहीं बताएंगे बच्चों, वो खुद आपको ही पता होना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं थोड़ी शॉर्टकट भी देने वाला हूँ इस बार, टेंशन मत लो आप, लेकिन पहले याद करनी है लॉन्ग कट से ये कैसे कन्वर्जन होता है। कई सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर ये तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है, हमारे सर ने हमें सिखाया था 1 किलोमीटर, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 किलोमीटर पे आते हैं ना तो सबको आता है, अगर ऐसे लिखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी, आई कैन से हाउ मैनी पिकोमीटर। ये पी छोटा है बड़ा नहीं है, बड़ा पी तो पेटा है 10⁻15, छोटा पी है तो ये पिको है 10⁻⁻12। अब यहाँ पे होने क्या वाला है वो मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों कि यहाँ पे नाउ मैं क्या कर सकता हूँ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू, नैनो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁹ मीटर। अब मुझे यहाँ पे कौन चाहिए, अब देखो इस और कौन चाहिए, पाइको चाहिए ना, पिको। सो 1 इंटू 10⁻⁹, ऊपर नीचे हम लोग पिको से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और इंटू क्या आ जाएगा मीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा काम हो गया, हमें यहाँ पे पिको मीटर मिल गया। जो नीचे वाला पिको है उसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, तो जो नीचे वाला पिको है उसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 10⁻⁻12। ओके, तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻9 -12 पिकोमीटर। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 10⁻⁻9 + 12 पाइकोमीटर। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा होगा, नहीं समझ में आ गई तो आप रिवाइज कर सकते हो पूरा वीडियो, ठीक है, टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻
-10 + 12 कितना आता है? 3 आया ना। 10:3 क्या आ जाएगा बच्चों? पिकोमीटर। सो ये वाला जो है वो फाइनली आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10,000 पिकोमीटर। 10:3 मीन्स 1000 ही होता है। कई बार बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है इन सभी चीज़ों में, लेकिन अगर वो धीरे धीरे करने लगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड जस्ट ट्राई टू लर्न इट। ओके, कोई बात नहीं है। अब शॉर्टकट ट्रिक्स देता हूँ। चलो अब एक है, हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा देख लेना अच्छे से कौन सी चीज़ है। चलो इसका आप आंसर निकालो। देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 500 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, लेकिन करना कैसे होता है? 500 माइक्रोमीटर को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, 500 इंटू 10⁻⁶ मीटर लिख सकते हैं। और क्या चाहिए? अब आपको चाहिए क्या हो? देखो आपको ईश्वर क्या चाहिए? सेंटी चाहिए, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं? इट्स 500 इंटू 10⁻⁶, ऊपर नीचे सेंटी और सेंटी से करेंगे इंटू मीटर। अब बात ये बनेगी, ये देखो सेंटीमीटर तो आ गया, 500 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटी। सेंटी में क्या होता है? 10⁻²। तब आंसर क्या आएगा? 500 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अगर ये 500 है तो 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अब आप याद करो, -4 है और एक 2 है, क्या होगा? 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा बच्चों? वहाँ इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखो, माइक्रोमीटर था तो मैंने माइक्रो की जगह क्या लिख दिया? 10⁻⁶। अब मुझे सेंटी चाहिए तो ऊपर भी सेंटी से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी सेंटी से डिवाइड किया। ऊपर तो ऊपर वाला सेंटी तो इधर आ गया, डिवीजन में जो सेंटी था 10⁻² हो गया। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये हो गया -4, 6 में से 2 जाएंगे तो -4, 10⁻² होता है तो -4 -2 बचता है बच्चों, 0.05 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो ये जो चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। शायद सोचता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक शॉर्टकट देता हूँ। शॉर्टकट देखो, 500 अभी हमारा जो आगे आगे वाला जो सम था तो कुछ इस तरह ही तो था कि 500 सेंटीमीटर, sorry, it was micrometer. 500 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो आपको कैसे इसको शॉर्टकट में लिखना है तो आप समझो कि माइक्रो की जगह पे आप क्या लिखो? 10⁻⁶। और सेंटी की जगह पे आप क्या लिखो? 10⁻²। अब आपको इस दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस में याद रखना दोनों के बीच में माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ और ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो आपको लिखना कैसे होता है? अभी फिर से एक बार, माइक्रो का हमने कितना लिखा? 10⁻⁶, सेंटी का 10⁻², इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, -6 + 2 ये हो गया -4। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना है? अब आपने ये लिख दिया कि दोनों का डिफरेंस 10⁻⁴ है, तो अब ऐसे लिखो 500 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये 500 जो है वो तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है, फिर आपने जो यहाँ से डिफरेंस निकाला है ना वो आप यहाँ पे लिखोगे, तो फिर से आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। थोड़ी सी बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो एक और शॉर्टकट दे देते बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर से अदरवाइज बार बार रिपीट करो आप इस वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास है 25 किलोमीटर इज इक्वल टू
हाउ मेनी नैनोमीटर। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब आप समझो कैसे शॉर्टकट करते हैं। किलो का हम कितना लिखते हैं 10⁻3, नैनो का हम लोग कितना लिखते हैं 10⁻−9। दोनों का डिफरेंस 10⁻3। गलती यहीं पे हो जाती है, 9 - 3 कितना कर देते हैं 6, लेकिन ऐसा नहीं है, -9 ये हो जाता है 10⁻12। तो अब क्या आता है, तो अब ऊपर वाला देखो आप 25 से किलोमीटर इज इक्वल, आपको 25 तो लिखना ही लिखना है, इंटू 10⁻12 नैनोमीटर। ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर। तो बच्चों आप समझने की ट्राई करो कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, कैसे मैंने आपको शॉर्टकट दी, समझ रहे हो बात। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्यों आए, तो जो अभी आपको क्वांटिटी अगर बड़ी है या छोटी है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अच्छे से उसको दिखाने के लिए ही हम लोग जो है तो यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, आप ये वीडियो पॉज करोगे और पॉज करने के बाद आप जो है वो घर से थोड़े से जो एग्जाम्पल है खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, और उसके आंसर जो है मुझे व्हाट्सअप कर देना, आप लिख के क्या आया था। अगर 10 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी, ये स्मॉल पी है पाइकोमीटर, ठीक है। फिर दूसरा वाला 2200 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। फिर 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी नैनोमीटर। फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि लाइक 40 स्मॉल पी एम इज इक्वल टू हाउ मैनी, ये हो गया आपका कैपिटल पी एम। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं स्मॉल है कि कैपिटल है, आपको पता चल ही जाएगा। ये है पिको है और ये है पेटा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो लाइक 1 2 3 स्मॉल वाई एम इज इक्वल टू हाउ मैनी कैपिटल वाई एम। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर करोगे नहीं खुद से तो नहीं आएगा, आपको खुद से करना ही पड़ेगा बच्चों, तभी आपको आएगा। लास्ट वाला एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 100 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी माइक्रोमीटर। यहाँ पे मीटर है, सिर्फ आपको माइक्रो लाना है, तो ऊपर नीचे माइक्रो से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। वो आप देख लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना। चलो, तो ये जो है आपको जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, जैसे ही वीडियो आप पूछ करोगे और ये लिख लोगे, तो फिर मुझे आप सेंड कर दोगे, जैसे ही आप सबको देख रहे हो, आप गिन रहे हो उसके बाद। चलो ठीक है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, वो किसकी बात करने वाला हूँ, मास एंड वेट की बात करने वाला हूँ, समझ रहे हो बात। लेकिन उससे पहले हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं। चलो एक सेकेंड। ओके बच्चों, अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, write short note on mass and weight. ओके चलो, मास किसको बोलते हैं और वेट किसको बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा समझना कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। चलो सबसे पहला मास। सो बेसिकली आई कैन से अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इज नोन एज अ मास। और ये जो है मैं ये कह सकता हूँ, वेट इज द फोर्स exerted by gravity. It is force, हम बोल सकते हैं exerted by gravity। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट ऑफ मैटर है, इसका यूनिट केजी है। और एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो हम लोग जो है वो वेट को भी हम लोग केजी में ही डिनोट करते हैं। बाय द वे हमारे लिए अभी जो है ये दोनों कैसा रहता है भाई, सेम ही रहता है।
इसको मेजर करने के लिए हम लोग एनालिटिकल वैलेंस यूज करते हैं। इन सेम वे इसके लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, एनालिटिकल वैलेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एनालिटिकल वैलेंस। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको अच्छे से, अगर मैं समझाऊं आपको, तो मास जो है हर बार कांस्टेंट रहता है, मास विल रिमेन कांस्टेंट। where weight can vary from one place to another। अब ये बात थोड़ी सी समझ लो कि मास विल रिमेन कांस्टेंट, वेट कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक अच्छी सी बात करना चाहूँ, अगर आपको आपका वेट कम करना है, तो कोई भी एक्सरसाइज और जिम की जरूरत नहीं है। क्यों? अर्थ पे अगर जिस बंदे का ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो अर्थ पे जो 60 kg का है बंदा, वो मून पे जब जाएगा, तो मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 जितना है, वो बंदे का वेट वहां पे कितना होगा, 10 kg। कहना ही चाहता हूँ कि अर्थ के कंपेयर में मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो थोड़ा सा कैसा है, कम। समझा बात? ओके, तो ये बात बनती है बच्चों। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट वन हम लोग बात करें, ओके। सो नेक्स्ट में बात करूँ तो ये हो गया हमारा मास सेम, क्या हो गया बच्चों, वेट के बारे में पूरा फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, यस और नो? हाँ, अभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि सर हमारा तो मास मेजर करते हैं कि वेट। एक्चुअली हम अपना वेट मेजर करते हैं, लेकिन इन द टर्म ऑफ मास ही हम लोग उसको बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे हमारे वेट और मास को सेम ही गिनने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो मास और वेट के लिए जो है वो बड़े यूनिट है बच्चों। ठीक है, मास और वेट के लिए जो है वो बड़े यूनिट है ही है। ओके, जैसे मैं आपको बात करूँ तो मास और वेट के लिए बड़ी यूनिट है, उसके लिए छोटे भी यूनिट है। सपोज किलोग्राम है, तो अगर इसके आपको छोटे यूनिट चाहिए तो माइक्रोग्राम ले लो, मिलीग्राम ले सकते हो, नैनोग्राम ले सकते हो। और इससे भी अगर बड़े चाहिए तो अभी क्विंटल और ये सब यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर छोटे यूनिट है तो इसमें माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम यूज कर सकते हैं। हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है। ओके, तो ये जो है हमारा पूरा पॉइंट है। अभी आपको 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी। और आप कैसे नोट बनाओगे, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमें नोट कैसे बनाए, तो आप देखो हाउ टू राइट फॉर केमिस्ट्री। मुझे 2 पेरेंट्स के कॉल आए थे, इसीलिए मैं लास्ट 4-5 मिनट्स में आपको बता दूं कि आप जो है वो केमिस्ट्री कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपकी 3 नोट बनेगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाली जो है लेक्चर नोट बोलते हैं। लेक्चर नोट मतलब ये होता है कि जो भी बोर्ड पे मैं लिखता हूँ वो साथ ही साथ आप लोग लिख रहे हो और अच्छे से नोट बना रहे हो। बच्चों अभी ये 8-9 नहीं, आप इसको रफ नोट नहीं बोल सकते, ये लेक्चर नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आज जो भी चला है उसमें से लाइक 20% ही टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर उसमें लेक्चर नोट में लिखा है तो आपको पता चलेगा ना। दूसरा एक होता है कि जैसे होमवर्क के तौर पे आप जो पूरी टेक्स्ट बुक की जो थियरी अकॉर्डिंग टू द, हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, टेक्स्ट बुक जो है वो आपको लिखनी है एक नोटबुक में। समझ रहे हो बात? तो उसमें पूरी की पूरी जैसे डिप्टो टू डिप्टो, लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक का होगा। उससे क्या बेनिफिट होता है कि पूरी एनसीईआरटी एक बार लाइन टू लाइन आप रिवाइज कर पाओगे। एंड द थर्ड है वो किसकी होती है भाई, एक्सरसाइज एंड प्लस जो इंटेक्स्ट है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए आपकी एक नोट बनेगी। तो अब आप हर बार ये मत सोचो कि भाई कौन सी नोट में लिखे। और हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ जैसे चैप्टर खत्म होगा इसके सभी 200 अराउंड एमसीक्यू करवा देंगे। और जो है उसके लिए भी आपको जो बुक बनानी है वो आप लेक्चर नोट में रख सकते हो। या फिर आपको एमसीक्यू के लिए जेई और नीट है तो उसके लिए
एमसीक्यू की बुक बनानी है तो ये चीज आप कर सकते हो एमसीक्यू के लिए अलग, लेकिन उसमें एमसीक्यू की जैसे हम बोले तो क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, आंसर और मेथड कैसे आए, लेकिन वो क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, ये है। तो अगर ये सब चीज आप अच्छे से फॉलो करते हो ना बच्चों, तो अच्छे से केमिस्ट्री में आप लोग मार्क्स ला सकते हो। एंड डोंट वरी, वी हैव लॉट्स ऑफ good results, okay, and we have done nice in chemistry. I am knowing that you all are doing a very good stuff. We will do our chapter 1, okay, so don't worry about it, okay। चलो हो गया ये। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग ये ट्राई करेंगे, पक्का वाले ये ट्राई करेंगे कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। लेकिन आपको इस बार जो है अच्छे से पहले ही समझे प्रीफिक्स किस लिए देते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद हमने ये देखा कि ये सभी यूनिट्स है, तो लार्ज क्वांटिटी में भी बता सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में भी बता सकते हैं, इसीलिए प्रीफिक्स आए। प्रीफिक्स को यूज़ क्यों करते हैं वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद हमने यूज़ किया कि भाई चलो ये प्रीफिक्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो नैनो की जगह क्या लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁹। अगर दोनों और है तो पहले लॉन्ग कट से सिखाया, पूरा लॉन्ग कट से सीखने के बाद हमने थोड़ी सी क्या ट्राई की बच्चों, इसमें शॉर्टकट लगाने की भी अच्छे से हमने क्या कर दिया बच्चों, पूरी की पूरी ट्राई कर दी है। समझ रहे हो बात। तो बेस्ट ऑफ लक इस लेक्चर के लिए, और आपको ये चीज अच्छे से करनी ही है, ओके। जैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के पर्पज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने मास और वेट के बारे में देखा। नेक्स्ट जो है वो हमारा वॉल्यूम के बारे में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में आएगा बच्चों, वॉल्यूम के बारे में आएगा, ओके। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।